First of all, warm welcome to the Lahore Policy Exchange session on Pakistan's energy transition. A thank you to the organizers, CDPR, IGC, World Bank Group, and of course the esteemed panelists, and to all those who are attending. They've asked me कि इसको multilingual हम करेंगे, उर्दू में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे. नोट्स मेरी सारी इंग्लिश में हैं, तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इंग्लिश में होगा, but I'll try to add in Urdu as well. Let me start with an introduction for myself. Waqas Musa from Hedron Solar, also representing Pakistan Solar Association. आज का सेशन जो है उस पर हमारा फोकस है द नेक्सस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड द एनर्जी सेक्टर इन पाकिस्तान, and we'll try to explore some practical solutions and see how we can address the challenges which we are facing. The panelists which we have with us, first of all, Faraz Hayat. Faraz Hayat is a postdoctoral scholar at the International Growth Center, IGC. He holds a PhD in economics from the University of Chicago. His research focuses are energy, environment, and development economics. Faraz is currently collaborating with the federal and provincial policy stakeholders on various projects in these areas. Next to Faraz is Dr. Fayaz Ahmed Chaudhry. Dr. Fayaz is, does not need an introduction, but he's an electrical engineer with over 34 years of experience in the electric utility industry, consulting on engineering as well as academic environments. He's the founding director of the LUMS Energy Institute, and he also holds the distinguished position of the Siemens Werner Vaughan Chair. Before joining LUMS, Dr. Saab was MD at NTDC and also held other senior management positions in multiple electrical utilities in Pakistan as well as in consulting engineering firms. उनके साथ Ms. Sania Wais हैं. She is a leading Pakistani business executive. She is the managing director and chief executive officer of the Punjab Power Development Board under the Energy Department of the Government of Punjab, and also the newly established Punjab Grid Company. And mashallah, she's the first woman to head the board for the last 10 years. She's a master's degree holder in engineering management. Next to her is Manahil Raza. She is currently working as an energy specialist at the World Bank and has several years of experience working in research and development with a focus on governance, data analytics, and energy. Through her technical knowledge of governance and hands-on experience in data analysis, she has assisted the government in national and sector level policy-making projects. So we welcome you on board. Then we have Mr. Kamran Masood. He is an engineer who currently he has over 20 years of experience in the power sector. He's currently holding the role of additional manager of contract management at Mirad in Lesco. He has experience in planning, design, operations, procurement, and regulatory affairs. With this, we've completed the introduction of the panel. We have a very distinguished panel, and they'll, of course, be sharing insights with us today. In terms of the time structure, we will take about 15 minutes for Faraz to give an introductory session. Then we will invite the panelists one by one to speak, and at the end, in the last 15 minutes, we'll have question answers. टाइम हम कोशिश करते हैं कि उसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह. I'll be looking at my mobile again and again. Faraz Saab, off to you. So the plan for this presentation. So the first empirical fact is that electricity is super expensive in Pakistan. मतलब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है. How do I think about this? If you're thinking about somebody consuming 230 units of electricity, तो उसका जो पाकिस्तान में बिल आता है वो roughly आता है 9,200. इसमें FPA included नहीं है, so it should actually be even higher, around 10,000, 11,000 rupees. What is 230 kilowatt hours of electricity? 230 units के अंदर आप 280 watt के बल्ब और 280 watt के पंखे चला सकते हैं for a month. So it's like pretty minimal consumption when you're thinking about summer. Or a Pakistani has to spend 20% of their income. मैंने average income use की हुई है पाकिस्तान की, so 20% of your income is just being spent on such basic usage of electricity. इसको आप compare करें Texas के साथ. Over there, the same amount of consumption of electricity will cost you 14,000 PKR, which is 0.01% of the income, average income monthly. So number one, in very developed parts of the world, आपको बहुत कम खर्च करना पड़ रहा है इतनी बेसिक नेसेसिटी के ऊपर. बट दिस इज इवन मोर एक्सेंचुएटेड बाय द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर 230 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि अगर आपने ये 2 पंखे 80 वाट के लगाए हुए हैं, टेक्सास में बंदा 20 वाट का चला रहा है पंखा, उसका ज़्यादा कंजर्वेशन भी है, सो ही इज गेटिंग मोर जूस फॉर द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पुट इन, राइट? सो
so electricity is super expensive in Pakistan. That's the point over here. Okay, somebody in the US is getting far more benefit from that amount of expenditure, only of 0.01% of the income. और उसके अंदर जो दूसरा point है कि since 2021 unit price has risen by more than 123%. ये सिर्फ यूनिट प्राइस है जो स्टेटेड बिन की प्राइस है, इसके ऊपर टैक्सेस और भी बढ़े. So this is like a lower bound on the amount of increase in prices that has happened since 2021. So electricity is super expensive, that's the bottom line. इसकी वजह क्या है? इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं. एक जो बड़ी वजह है वो ये है कि बिजली की लाइन लॉसेस, थेफ्ट एंड नॉन पेमेंट इज़ अ बिग इशू. टिपिकली इस तरीके से होता है कि अगर आप पूरे सिस्टम का देखें तो रफली 25 out of 100 units are being lost, and that's a massive number, because agar if you're expecting, if you're going to tell somebody at Amazon that, oh, like 25% of your good delivery is just going to be lost in transit, unka business band ho jana hai kal hi. So it's like a pretty big number. इसका जो मैंने ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस इज लाइक अ हिस्टोग्राम ऑन द वाई एक्स. सो हम लोगों ने केपी के अंदर, चारसड़ा के रीजन के अंदर एक छोटा सा पायलट किया था. रफली 1600 हाउस होल्ड्स इस सैंपल के अंदर हैं. द हाइट ऑफ द बार्स रिप्रेजेंट्स कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सैंपल उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉइंट के ऊपर है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है कि ऑन एवरेज 2022 में कितने लोगों ने अपने बिल का कितना परसेंटेज अदा किया. So you can see कि 20% of the लोग they're essentially at zero. उन्होंने पूरे 2020 में एक अठन्नी नहीं दिया, right, to the PESCO thing, which is like a massive number. 20% of the people have just not paid a single dime in the entirety of 2022 in Charsada. Then you also have people who are payers. They are the ones who are at one, and then you have a bunch of people in the middle जिनका essentially वो पे करने की कोशिश करते हैं, कुछ महीने में होता है, कुछ में नहीं होता, इंस्टॉलमेंट हो जाती है वगैरह वगैरह. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे फिर दो तरह के लोग हैं, जो कोशिश करते हैं पे करने की, नहीं कर पाते, जो इधर बीच में आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं देते, कुछ भी हो जाए. उनके लिए पोटेंशियली वन शुड कंसिडर मोर लीगल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एंड इनके लिए इनकी किस्तें आसान करने का सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर रहेगा जो बीच में लोग आ रहे हैं. सो देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ हेट्रोजेनिटी इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस सॉर्ट ऑफ लाइन लॉसेस, थेफ्ट एंड नॉन पेमेंट एक्चुअली ऑपरेट्स इन द कंट्री. ये एक वजह है ऑन द डिमांड साइड, जो कंज्यूमर साइड है. सप्लाई साइड पे एक बहुत बड़ा इशू एसेंशली आपका उसका है, ये थर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स का और आईपीपीस का इशू है. द कैपेसिटी पेमेंट्स जो सबको पोटेंशियली इसका अंदाजा होगा. सो द ग्राफ ओवर हियर, ईच बॉक्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पावर प्लांट. ठीक है, उसकी जो हाइट है वो बता रही है कि इस पावर प्लांट का कितनी कैपेसिटी थी, और उसकी जो विड्थ है वो बता रही है कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू हुआ था, कब खत्म होगा. So the feature over here is कि number one, and I've color coded it based on some of the types of fuels that are being used. So the point over here is कि thermal काफी ज़्यादा है, लाल बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस स्क्रीन के ऊपर आपको. सोलर का मैं भी आपको फ्रैक्शन बता दूंगा, बहुत छोटा है तो इस पर दिखना ही नहीं था, तो मैंने इंक्लूड नहीं किया था. हाइडल काफी ज़्यादा है. But the key point over here is कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनकी लेंथ आप देखें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 2000 में शुरू हो रहे हैं, वो 2040 तक जा रहे हैं. There are some which are starting midway through 2000s and they're going forward, and then there are ones at 2015 onwards which are going to go till 240 plus. So ये बहुत लंबे duration पे ये contract set हुए हैं. So that's one issue. So let's dive a little bit into कि इनका क्या हो रहा है यहाँ पे, contracts में issue है क्या थोड़ा बहुत. One big problem जो specifically जिसकी वजह से अभी price ज़्यादा हुई भी है, वो ये है कि these contracts are essentially indexed against local inflation, foreign inflation, as well as the dollar. तो ये 3 types की indexations independent power producers को मिलती है. So you can see over here, जैसे अब you'll have to आपको आंखें squint करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे return on equity is linked to the dollar, and the variable O&M that's also linked to the dollar as well as the US CPI जो हर महीने वो जो update करता है Bureau of Labor Statistics in US. तो इससे problem क्या आती है? इससे प्रॉब्लम ये आती है कि if you look at the power purchase price in the country from 2000 and after 2022 there was a massive depreciation that happened in PKR. उसी वक्त precisely आपकी बिजली की जो power purchase cost है वो इतना spike आता है उसके अंदर, जो typically government adjust करती है या तो rebasing of the tariffs या जो quarterly adjustments चलती हैं उसके through. But the key point is that this is like a massive issue. और इसका problem है क्या अब? इसका problem ये है कि this becomes pro-cyclical. प्रोसिक्लिकल से मुराद ये है कि जब आपका कंट्री को कोई नेगेटिव झटका आता है
पूरी इकोनॉमी को बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या क्लाइमेट शॉक वगैरह जो भी जैसे अभी सैलाब वगैरह आए थे, तो उसके अंदर आपकी एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव शॉक आता है, करेंसी स्पेकुलेटर्स वगैरह जिसकी भी वजह से। प्रिसाइसली जब कंट्री के अंदर ये लोअर डाउन का आता है मसला कि इकोनॉमी बैठ रही है, उसी वक्त बिजली की प्राइस भी ज़्यादा महंगी होती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि एक्सचेंज रेट में इंडेक्सेशन हुई हुई है। तो ये इसको प्रोसिक्लिकल बोलते हैं, क्योंकि जब साइकिल आता है डाउनवर्ड तो उसको मजीद एक्सेंचुएट करता है बिजली की कीमतें और बढ़ा के। सो द कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर इज लाइक प्रीटी weirdly set up. Typically आप इस वेरिएंस को कम करना चाहते हैं कि ये इस तरीके से ना हो कि जब चीज़ें ख़राब है तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। तो इनकी जो एक्सचेंज रेट इंडेक्सेशन है वो करती है, उसकी वजूहत हैं कि वो क्यों होती हैं, वो एक सेपरेट वी कैन डिस्कस इन अ सेशन आफ्टरवर्ड्स। लेकिन दिस इज़ वाई अभी जो है आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो एसेंशली हो गई हैं। आई थिंक देयर लाइक अराउंड 2 ट्रिलियन और समथिंग, देयर सिमिलर टू द आर्मी बजट एसेंशली। तो वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एंड दैट्स ऑल बीइंग जनरेटेड थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एट द मोमेंट, क्योंकि वो सारा वॉल्यूमेट्रिक प्राइसेस में डाल देते हैं। ओके ग्रेट, हाफिज़ उधर हैं, ओके ग्रेट। उसके बाद जो अगला फैक्ट है कि अब हम रिन्यूएबल्स की अगर तरफ आते हैं, तो द पॉइंट इज कि सोलर एंड विंड कॉस्ट हैव फॉलन मच मोर देन प्रेडिक्टेड ग्लोबली। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, बट द की पॉइंट ओवर हियर इज कि इस पे आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी और आपको ये ब्लू लाइन बीच में नीचे दिख रही होगी। जो रेड लाइन है वो लोगों ने प्रिडिक्शन की थी कि हमारे मुताबिक सोलर इतना होना चाहिए था, वो असल में और ज्यादा नीचे हो गया, काफी ज्यादा। दैट्स द बॉटम लाइन। सो द सोलर एंड विंड कॉस्ट हैव फॉलन बाय अ लॉट, एंड दिस फैक्ट इज आल्सो ट्रू फॉर बैटरीज की भी कीमतें जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा कम हो रही हैं, उससे ज़्यादा तेज़ी से कम हो रही हैं। और इस वजह से सो देयर इज लाइक ऑब्वियसली लाइक एन इकोनॉमिक इंसेंटिव कि अच्छा ठीक है हमें सोलर की तरफ पोटेंशियली शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे अब काफ़ी ज़्यादा सस्ती बिजली मिलना शुरू हो गई है। और रिन्यूएबल्स की तरफ हमें चलना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली fossil fuels haven't seen this similar sort of cost decline. इनका essentially horizontally prediction है कि इतनी चलती रहेंगी इनकी जो कॉस्ट्स हैं बिनिस्बत जो अभी इससे पहले आपको ग्राफ दिखाया जिसमें वो पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड था प्राइसेस के ऊपर। एंड द अदर पॉइंट विद फॉसिल फ्यूल्स इज कि ऑब्वियसली देर नॉट इंडिजिनस सोर्सेज, तो वो आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसका मजीद आपके ट्रेड बैलेंस में प्रॉब्लम आता है उसकी वजह से, विच इज़ नॉट द केस विद ऑब्वियसली सोलर, वो सूरज की रोशनी इंडिजिनस है। This is what I borrowed from a World Bank report. As per them, Pakistan's grid can already handle around 20% of renewables का share, जो काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान का असल में अभी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा कितना है, लेकिन पाकिस्तान ग्रिड कैन हैंडल 20% रिन्यूएबल्स, जिसके अंदर सोलर भी आप डाल सकते हैं। तो हम लोग इतने लोएस्ट स्टेप पे हैं कि इसको ज़्यादा पोटेंशियली किया जा सकता है। सो वेरी क्विकली आई वांट टू जस्ट शो दिस डायग्राम। सो दिस इज लाइक पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स पोटेंशियल येट। वो जो डॉटेड लाइन है ऊपर वो एसेंशली पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है। सरहद के इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो जितने भी रेड और ब्लू आपको दिख रहे हैं ये सारा सोलर है, और लेफ्ट साइड पे उसका पाकिस्तान है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा आपको कम रेड और ब्लू दिखेगा। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर आज अभी आई बोरोड दिस फ्रॉम द नेपरा 23 रिपोर्ट, 0.7 गीगावाट्स लगा हुआ है सोलर का। राजस्थान अलोन विच बॉर्डर साउथ पंजाब एंड आपका सिंध को रीजन, दैट हैज 24 गीगावाट्स ऑफ सोलर इंस्टॉल्ड, जो आपकी हाफ कैपेसिटी से भी ऊपर हो रहा है टोटल। और पाकिस्तान का गोल फिलहाल है आई थिंक 13 गीगावाट्स। और इसका फायदा है उधर क्या हुआ उसका इंडिया के अंदर कि द पावर परचेज प्राइस फ्रॉम दिस सोलर इन राजस्थान इज अराउंड 6 to 7 PKR per किलोवाट आवर, जो काफ़ी लो है बिनिस्बत जो हम लोग यहाँ पे करते हैं उससे। सो उसके बाद तो पाकिस्तान की एग्जैक्टली रिन्यूएबल अपॉर्चुनिटी है क्या? रिन्यूएबल से आपको चीपर पावर मिलती है, इसके अंदर आपका क्लीनर एनर्जी मिक्स होता है, सो दिस इज मोर अट्रैक्टिव फ्रॉम अ फॉरेन सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव, कि क्योंकि इवेंचुअली आपकी जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स हैं दीज आर गोना हैव कार्बन टैक्सेशन इंक्लूडेड इन देम। तो अब जब उनके अंदर कार्बन टैक्सेशन आना शुरू होगी और आपकी फर्म्स के पास क्लीन पावर नहीं आ रही है, तो उनकी कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी, उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उस चीज़ की। सो इट्स बेटर टू काइंड ऑफ प्लान फॉर दिस एंड हैव द सप्लाई चेन, हैव द एनर्जी सप्लाई चेन एटलीस्ट बिकम क्लीनर। और ऑब्वियसली जो इसका थर्ड बेनिफिट है क्लियरली वो ये है कि आपका ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपकी इंपोर्ट्स फॉसिल फ्यूल्स की होती हैं फॉर पावर रिलेटेड रीजंस। और इसके बाद there's briefly like इसके लिए broader points ये हैं कि stability हो, competition, we can go into more of these I think in the discussion. तो I would just conclude over here. I think this should be like a good thing to kind of set up the context क्या है और किस तरीके से hopefully आगे conversation हो. Thank you so much. Thank you very much, Faraz.
Appreciate the setting of the context and the insightful points which you shared. I think we'll move to the panelists, starting with Dr. Fayaz. Dr. Fayaz, if you'd like to sort of add some perspective, specifically, perhaps if we can talk about barriers and challenges which are faced by us as a nation as we transition towards this renewable energy, and then putting it in context of climate change, obviously. Ji, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Since we have a liberty, to have a multilingual, talk, so I might, thodi punchline, I might say in Punjabi also. So whatever we heard till now, primarily, again, symptoms. Ho gaya, oh ho gaya. That's what the results that we are facing. But do we really understand what really caused it? And are we entering into another trap down the road? अब सोच की बात तो ये है. What I will say, अभी जो इशू फ्रेम हुआ है, टोटल पर्सपेक्टिव अभी नहीं मिला है. Let me add few things. With numbers, one is a local, one area that, represented that we didn't collect enough money. Yeah, this is one issue. Is this the core issue? How much business does power system owners and operators, they do? Total business. The total business is over 3,000 billion rupees. 31-32 लगा लें. Out of that, 72% is your fixed cost, which we rightly pointed out, 2.2 trillion rupees पाकिस्तान बंद करके छुट्टी करके ऑस्ट्रेलिया चले जाने हैं. But we owe 2.2 trillion rupees. Then the next question is, आज पता लगा. Did we know this 7 years ago, 8 years ago, 10 years ago? Yes, we knew it. So how did we end up here? So the opportunists, naturally, I usually say, sorry to, World Bank representative, सब बच्चे हैं मेरे उसी. When I was at NTDC, somebody was, trying to plead his case. मैं कहा यार तू सीधी गल करना, तू पैसे बेचना है. ठीक है. This is what your कारोबार is. So you want me to spend money, either I need to spend it or not. मैं कहा यार फैसला मैनू करन दे रहा कि do I really need to spend this money? So अभी रिन्यूएबल की बात हुई, अब सोलर वाला कहा भाई मेरा तो हुण सस्ता हो गया ले लो. Is this our problem? Is supply is our problem? पहले तो कंट्री में हमें यह देखना है, is supply our problem? Which is not. Supply दे लगी फिर दी. अब that decision making, how did it we end here? उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है, ये सारा चैलेंज पूरे कंट्री को आपके और मेरे घर की वजह से. अब इसको जरा हजम करना पड़ेगा. Let me share the numbers. In winter, 4 months, sorry, I will take some more time because I'm trying to set the stage before we can even, have a meaningful discussion. For 4 months, winter, our demand varies between, it used to vary between 7-11, now it is 8 to 12. So in winter, again I'll say nobody goes
vacation for 4 months. My industrialists, घर दे बाहर कोई बत्ती जल रही है, कोई गेट की बत्ती जल रही है, कोई स्ट्रीट लाइट जल रही है. So it means my real base load is below 6,000, which is like my industrial 24/7. Others is our consumptive load. So really the countries which we are talking about comparing India, I'll talk about that also. So 6,000 or less with 25 crore people. Load is less than 6. So that's the productivity. Less than 22% is your industrial demand. When I joined WAPDA in 85, industrial demand composition was over 40. That's how the countries grow. You have a productive demand. They add into the GDP growth. What we have done? 60% of the energy is consumed by our buildings. जो मैंने घर की बात की. एंड ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ. दुख जिस बात का ये है, वो जो 12,000 सर्दियों की पीक है, वो गर्मियों में 32 है. 31,270 ये सिस्टम ऑपरेशन का लास्ट ईयर का नंबर है. अब ये 19 से 20,000 मेगावाट की जो डिमांड है, ये क्यों है? वो आपके घर की वजह से. और घर में क्या खराबी है? ये सारी पिछली 30-40 साल से ये नई जनरेशन, अल्लाह करे ये हमारे को काम कर दे, जो मेरी जनरेशन है, वी फेल्ड दिस कंट्री लिटरली. पिछले 30-35 साल से हु इज इन दी मैन पावर? पीपल ऑफ माई एज, जो 5-4 साल छोटे हैं, लाइक सानिया, शी इज ऑल्सो वन ऑफ द कल्प्रिट्स लाइक मी, उसी जनरेशन से बिलोंग करती. What we did, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने घर बनाए. उस वक्त जो भी मीन्स थे, पैसे मीन्स थे, वो भाई रोशनदान रख लो, बरामदा कर लो, यार तो पानी है, चेक ला लो, डू समथिंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. अब क्या है? फर्स्ट आई मेक माई हाउस ओवन. लिटरली आप अपने फ्लोर पे ऊपर चले जाएं, 1-2 दिन आप घर बंद करके चले जाएं, कुछ 7 दिन तुसी ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. So first we make our house oven, then we are trying to cool it. ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹਾਲੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ. When you enter into home in winter, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. When you sit outside in 25 degree temperature, तो ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ कि धुप सेक ला मैं. So the house which was supposed to protect us from the environment in the last 30 odd years, the way we created DHAs, barrier towns, अजी सोहने लगते हैं. वो मैं यार आता अचार पाना दैट. और फिर एक डेटा भी लंगड़ियाल साहब ने इशू अपना शेयर किया अपनी ट्वीट पे. Only 7% of the people, they consume electricity more than 300 kilowatt hours. 7%. So now, ਜਿਹੜਾ AC ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ? And which is 7%. So then the 7% of the people of this country has created this challenge for rest of the 93%. So that 12,000 megawatt, which is now 31 to 32 to almost 20,000 megawatt, how much does it cost? On average, nuclear 4 million का एक, ठीक है, हाइड्रो 3 point something का, अपनी जो जितने आपने विंड लगाया तकरीबन 120 मिलियन के, तकरीबन 2 मिलियन का 1 मेगावाट लगा. On average is $2.5 million 1 megawatt. अब वो थर्मल लग गया, तरबेले लग गया, भाषा लग गया, तो वो घर कैसे पहुंचेगा? आपने घर की बत्ती ऑन करेंगे तो चलेगा, बिजली चला तभी फ्लो हो. सो यू नीड T&D, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन. सो 1.5 मिलियन उस पर लग जाएगा. सो $4 मिलियन में आपका 1 मेगावाट कहीं टिम्बकटू में लगा, तो तब तक आके आपके घर पहुंचा.
20,000 के जरा जरब दे ले। और ये किसके लिए लगाया है कि मैं अपनी दीवार ठंडी कर ला, जो कि मैंने बेवकूफी से बनाई। और वो उसके लिए जो मैं 20 अरब 80 बिलियन डॉलर का कंट्री को लोन में दाग दिया, 7% ऑफ द पीपल, और जिन्होंने घर गलत बनाए, एंड एज एन इंजीनियरिंग कम्युनिटी आई डिड नॉट क्वेश्चन। वो मेरा पीईसी, मेरी रेगुलेटरी अथॉरिटी सुते पे ने, घर सोने बन रहे हैं। सो द प्रॉब्लम जहां है उसको फिक्स करना है। जब आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगे, उनको तेन प्लांट की लोड़ है, भाई मैं अपना सौदा बेचता, उन्हें किसी कोई कमीशन खा लेगा, कोई और सिलसिला कर लेगा, सो दैट यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी विच वाज अ बैड अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्री। अब आ जाए उसकी, ये है आपका एक फीडर की नंबर। अब जब टोटल की नंबर बताता हूं। When I was at NTDC, 16-17 की बात है। 2017 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। 2017 फिस्कल ईयर में हमने कारोबार किया 107 टेरावाट आवर्स। आप नेपरा की हर जगह कहीं उठा के नंबर देख लें, 107। पिछले साल कितना कारोबार किया? 129.5। So, when the total generation capacity I had at 22 and the derated capacity was less than 21,000, now we have about 42, for which we are doing that debt servicing of 2.2 trillion. कारोबार कितना किया है? 129.5 minus 107, 22.5। So let me इक्वेटेड विद, जरा इसकी थोड़ी एनालॉजी कर लेते हैं। एक बस ले ली 50 की, भी बड़ी सवारी है, लाहौर इस्लामाबाद दी, 40 सवारी बैठेंगी, मैं 500 रुपया किराया रखूंगा, आई रिकवर माई कास्ट, लीज कास्ट, ड्राइवर को दे दूंगा ऑपरेटिंग कास्ट। और जो बस है वो कारोबार देखते हुए उन्हें किसी और ने अपॉर्चुनिस्ट ने देखा, हो मामा को मेरी किताब, मेरी बस भी पा बेच, चाचा आ गया, मामा आ गया, हुएवर। अब उस बस में सवारी बैठती है 10। अब आप 10 सवारियों से 40 सवारियों जितने पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें से कुछ एसडीओ को मारेंगे, टुडेज इवेंट, कोई चोरी करेगा। सो आपने वेल्थ क्रिएशन तो की नहीं। भाई वेल्थ क्रिएशन करोगे बलोचिस्तान, सिंध, मतलब से अच्छा। एक और दूसरा और अगला मिथ, ये है कि यार चोरी बड़ी होती है। स्टार्ट ही हमने वहां से किया। सारा मसला ये, मसला तो ये नहीं, मसला तो कितने और। चोरी टोटल कंट्री की डिमांड अगर आप 100% उसको करें, 19% of the country's demand is north of Gudu. So Sindh, Balochistan दोनों मिलके including के electric is not even 19%. अद्धा जाया हो जाए, जैसे भी आपने कहा, so what, और हो जाता। आ गई बाकी 67% is in Punjab and ISCO, टेस्को और केपी मिला के 14% वो है। अब आप ये देखिए कि जैसे उसमें भी आधा निकल जाए, या चलो 70, आपने जैसे कहा सारे इलाके तो ऐसे नहीं है ना, 60% वहां से रिकवर हो जाए। सो आपके वो जो ऑपरेटिंग कास्ट मेरी थी 950 अरब, असल मेरी कीमत तो जो 2200 अरब है वो तो मेरी कैपेसिटी है। तो जो मेरी ऑपरेटिंग कास्ट में से मेरे को 300-400 अरब चोरी में जाया हो गया। हुण मैं 300 अरब का बहुता फिक्र करा कि 2200 अरब का करा, ठीक। सो दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस। अब उसका क्या तरीका? प्रॉब्लम तो सारे नो, लेकिन इस अंदाज से मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को
शायद बात की समझ थी। अब इसका हल क्या है? हल ये है, इस पे जी जी, हम अब अगला सवाल करें। मैंने पर्सपेक्टिव सेट कर दिया। आपने बस मैं कोशिश ये करता हूँ ना कि बाकियों से भी इनपुट लेके इसी डिस्कशन वो कहते हैं दूसरे ने भी बोलने का मौका दिया। नहीं, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेटअप किया है। अगर आप इसको कॉन्टेक्स्ट में समराइज करूँ जो डिस्कशन थी, जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं उसमें एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिस पे एंड पे भी डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया कि 72% जो है ना, आपने बताया था कि हमारी कॉस्ट वो है फिक्स कॉस्ट है। जब हम बिजली का बिल पैसे देते हैं तो बिल तो वेरिएबल होता है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि सच्ची बात है कि नहीं सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जो पावर सेक्टर है, दैट्स द वे इट्स बीन मेड. So that's one problem which we have. The second problem, which is very interesting, which Dr. Saab pointed out, is the fact कि हमारी domestic demand, and this is something which is very important for us to look at, कि हमारी industrial demand बहुत कम है. बहुत सारी इसकी वजूहत हैं, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगी, वट एवर इनएफिशिएंसीज इन द हाउसिंग मार्केट, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, things like this. So that's and the number Dr. Saab said was ke a time ago it used to be 40%, and now it's gone lower. The domestic has a much bigger contribution versus this. So this is the second problem, which is quite big. And then this problem is exacerbated by the fact that we have a summer peak versus winter. Again, वो domestic का एक nature है, but also specifically हमारा जो geographical presence है वो भी है कि हमें summer में demand बढ़ती है. तो keeping these things in mind, अब अगर हम solutions की तरफ जाते हैं तो मैं डॉक्टर साहब की तरफ फिर से वापस आएंगे. बट इन बिटवीन मिस सानिया, अगर आपसे मैं पूछूं कि देखें, एक जो चीज़ है जो कि बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने रोल्स प्ले करने हैं. बिकॉज देखिए, रेगुलेटर है या जो डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वुड probably have a role to play in this, in the education, in the awareness. So perhaps if, and you know, because you occupy a position of in the government of Punjab, and your wealth of experience, so if you can talk a little bit about, you know, how the institutions can play a role in making this cost effective, and then also thoda sa as we transition, ye to hamare problems hain, as we transition towards a new generation of renewable energy and things like this, how we could play. Thank you very much. जी, Bismillahirrahmanirrahim. जी, Dr. Saab gave a very comprehensive state setting job. He did excellently. मैं थोड़ा सा इसको हम, you talked about institutions and mandates and how we can move transition towards renewables. Renewables को थोड़ा सा first panelist ने touch किया, और अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात भी कर लेंगे. इसमें ऐसे है जी, मैं एक डिफरेंट आप लोगों को एरिया के ऊपर थोड़ा सा, क्योंकि इसके एज ए प्रैक्टिशनर डॉक्टर साहब ने काफ़ी बातें बताई, मगर ज़रा इसको पॉलिसी लेवल पे भी देख लेते हैं कि हाउ पॉलिसी वाइज एंड इंस्टीट्यूशंस वाइज हाउ वी आर स्ट्रक्चर्ड इन पाकिस्तान पावर सेक्टर. इसमें ऐसे जी कि जो इट फ्लोज राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. वो ये कहती है कि ये, और वो ये कहती है कि सूबे भी, टॉकिंग अबाउट द प्रोविंसेस, हाउ सूबे भी खुद मुख्तार हैं कि वो दे कैन सेट अप पावर प्लांट्स, दे कैन हैव जनरेशन फैसिलिटीज़, दे कैन इवन हैव ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ विद इन द इंट्रा प्रोविंस ट्रांसमिशन, and they can also do the job of regulation as long as they stay within that province. Magar till about 2011, subject of electricity was totally federally vertically integrated. और उससे थोड़ा सा पहले सूबे in the subsector, we all know that sector electricity comprises of three main subsectors: generation, transmission and distributions. Suba did enter into the generation sector, but till very recently, transmission, distribution and regulation is totally federal subject, federally administered and federally regulated. अब इसमें हुआ ये जी कि I remember the summer of 2013, जिसमें कि we used to have 1 hour in Lahore, in the urban areas, 1 घंटा we used to have access to electricity, और 2 घंटे की load shedding. डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो 16 घंटे की load shedding summer of 2013 experienced, witnessed. उसके बाद this is like 16 hours, चलिए बहुत आप अच्छा कर लें 12 hours.
वी हैड जनरेशन शॉर्टफॉल, लोग बिजली इस्तेमाल करने वाले थे, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी या उस तरह से प्लेस्ड एंड स्ट्रक्चर्ड नहीं थी कि लोगों तक पहुंच सकें। लेकिन सरप्राइजिंगली उस वक़्त टोटल मुल्क की जनरेशन कैपेसिटी 19,000-20,000 मेगावाट थी। आज जब हम 45,000 के करीब हैं, आज भी दिस मॉर्निंग आई सॉ देयर इज़ अबाउट 12 आवर लोड शेडिंग इन द कंट्री। व्हाट इज़ द रीज़न? हम सब मिलके थोड़ा सा सोचें कि इतने एक whenever we as government of Punjab we talk to our federal stakeholders, तो इसमें we always get this sentiment back from them that we are oversubscribed, बहुत ज़्यादा बिजली बन गई है। मगर 12 घंटे की तो लोड शेडिंग अभी भी है लाहौर में और नेबरिंग इतना, तो क्या हुआ? अगर उस वक़्त एक जनरेशन और वी ऑल सेक्टर इनसाइडर्स वी एग्री कि अगर उस वक़्त जनरेशन शॉर्टफॉल था तो इस वक़्त एक अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। Or when I say affordability crisis, it's not only that you and I can't afford units of electricity. It means that there's not sufficient forex to import fuel. There is not sufficient financial muscle in the country to enhance, augment capacity of our distribution and transmission facility. There is not enough institutional arrangement to make all recoveries, control all thefts. Very unfortunate incident I saw this morning on TV that someone attacked SDO of Lesco who went to for a recovery or for theft control. Some people beat him up and he's in hospital in coma. Very unfortunate. Why such things are happening? So, transitioning to when the first time government of Punjab, and now that's the area in which I am more familiar with, started stepping into the sector of electricity, what was realized here was, even at that time, that if we want to add power projects in the country, they should have a decent share of renewables, those power generation facilities. Our first RE policy, Pakistan's came in 2006. And till 2015, under that policy, there was not one utility scale big solar power project till the April of 2015. First utility scale power project from Punjab came in the Qaidazim Solar Park. Then we did set up that project with our own equity because the private sector did not, local and international, did not have the confidence कि हमारे पास institutionally, contractually, grid protocol wise, ये maturity है कि our grid can absorb more intermittent energy, solar. So that our own project played a catalytic role and 4 others came in. And then you'll be amazed, in March of 2018, the federal RE policy expired. In Punjab Power Development Board, which I steer, at that time we had about 3,000 megawatt solar and wind in pipeline. But certainly the policy expired and there was no policy, and the projects in pipelines were not given a saving. The international investors were surprised that in Pakistan all of a sudden a policy expires and the projects in pipelines, they have no way forward, they have no roadmap, they have no savings. But unfortunately, for 2.5 years, in a country where we all, as the head of institutions, as policymakers, as government stakeholders, private stakeholders, we all agree, we all say there needs to be more renewables in the energy mix, there needs to be more RE in the grid. You'll be surprised that for good 2.5 years, there was no RE policy in the country. At one time, then Minister Federal for Energy went to Washington and conducted a roadshow, and someone there, I remember, pointed out that you are inviting investors to come into Pakistan and invest in the RE sector, but so far as I know, there is currently no RE policy in the country. So there is not only a planning void, there has been previously a policy void too. But the issue now has become different. The issue now has come to what Dr. Saab referred to in the very beginning, and I'll also point out. Then I remember in
2020 October probably the ARE policy federal 2019 came in, and all provinces and our federal counterparts, we had RE projects in pipeline. At that time, in the policy which was approved by CCI, it was decided that all RE-based procurements in the country will be done through a federal steering committee. But unfortunately, to date, after 4 years, there has not been a single meeting of that federal steering committee. So nothing was done. Our projects still somehow are surviving. We have put them on hold. The projects are there. And now, a month and a half ago, 2 months ago, the federal indicative generation expansion, capacity expansion plan was presented to NAPRA for approval. In that plan, till year 2034, there is no room for new projects other than the committed projects. So people like you and I and Dr. Saab and others would sit here and say that what can we do to add more renewables in the grid, must realize that there is no space in the grid. This is a very, very important point. And I think this point I'd like to sort of pass the mantle along. The point Ms. Sania ने जो बहुत ही interesting point raise किया है वो ये है कि एक तरफ हम renewable की तरफ transition करना चाहते हैं, ठीक है? दूसरी तरफ हम already full हैं, यानी हमने it's like आपके पास जो करंट स्केड्यूल है इस वक्त सोलर आईपीपीज क्या इस वक्त तो कोई भी आईपीपीज नहीं लगने चाहिए Exactly. क्योंकि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ये है कि हम इस वक्त शदीद ओवर सप्लाई में बैठे हुए हैं. दूसरे मसले हैं हमारे विच वी नीड टू वर्क ऑन एंड सॉर्ट दोज आउट, बट एट द सेम टाइम देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग चैलेंज विच इज़ कि वी वांट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल्स बिकॉज लाहौर में दिसंबर में नहीं रहा जाता because of the fog and all the other issues which we have. I mean, this is just क्या कहते हैं tip of the iceberg. There are so many other problems which we have. So Manahir, maybe it's like the question for you which I want to pose is कि given this constraint कि हम अपनी percentage इस तरह से नहीं सही कर सकते कि हम नए सोलर लगा दें और हम कहें कि हमारी percentage सही हो जाएगी. हमने more or less इसी energy constraints में रहते हुए ये करना है and with a lot of things, it always you're not the first person to face this problem. I'm sure there are other countries around the world who have faced a similar situation. Perhaps if you can share with us some examples from your experience of others who have undergone a similar kind of change. उनकी success stories क्या थी briefly अगर एक आध हमें mention करें. कुछ हम optimistic हो जाएंगे, थोड़े से भी हम pessimistic होके बैठे हुए हैं, सारे परेशान हो गए हैं, तो कुछ हमें आप उम्मीद दिलाएं प्लीज़. पहले सोलर की बात करूँगी. जब हम सोलर और क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में एक बाइफिकेशन आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जो कि हम और आप जैसे अपने रूफटॉप पे लगा सकते हैं या एक सोलर पैनल लेके उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. इट्स डिफरेंट दैन यूटिलिटी सोलर पार्क बिकॉज उसने आपके डायरेक्टली जो जनरेशन है उसमें इंटीग्रेट होना है. एंड टू इंटीग्रेशन के हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक वी हैव दैट IGCEP जिसके थ्रू हम उसकी डिमांड देख के भी आपने 2034 की बात की कि वहाँ तक हमारे पास कोई कैपेसिटी ही नहीं है टू इंटीग्रेट दो सोलर पार्क. वी लाइक दे गवर्नमेंट हैज़ केप्ट अ फ्यू मार्क बट उसके भी हमें फ्यूचर नहीं पता कि विल दे बी एबल टू इम्प्लीमेंट दो सोलर पार्क्स एज वेल. तो एक तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है. अच्छा, दूसरी डिस्टिंक्शन जो हम थोड़ा सा रिन्यूएबल्स की बात करते करते मिस कर जाते हैं, आई थिंक फराज ऑल्सो मिस्ड इट इन हिज प्रेजेंटेशन, इज़ ऑन हाइडल पावर. सो अभी बिकॉज हम विंड और सोलर की तरफ ज़्यादा बात करते हैं, हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो पहले भी थी अभी भी है और फ्यूचर में भी आ रही है. एंड इतना ग्लूमी फ्यूचर शायद नहीं है एक्सेप्ट फॉर द डेट पेमेंट्स दैट दे माइट हैव कॉज्ड, बट वी हैव दैट कैपेसिटी. एंड 30 और 60% के जो हम टारगेट्स देते हैं आपकी अच्छी खासी अभी भी एनर्जी पाकिस्तान की बिकॉज ऑफ हाइडल पावर इज़ सपोर्टेड थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी. अच्छा, इसमें अब आगे लेके चलती हूँ. मैं पिछले कुछ 1-1.5 साल से आई एम वर्किंग ऑन अ यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट और मैं छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़, एरिया की रिक्वायरमेंट,
से लेके रीसेटलमेंट्स करवाने से लेके. So this is a World Bank project that I'm supporting since solar का, and we have two projects. One is under KE and the other one is under HESCO. So off-taker is KE in one, and it's slightly better because KE, because it's sort of an autonomous body. It's easier to work with them. They have their own expansion plans. They have their own protocols. तो उनके साथ जब हम एक private sector के साथ deal करते हैं तो the stage is completely different. Whereas when we discuss the similar things on the फेडरल साइड जो हमारे हेस्को के साथ प्रोजेक्ट है, तो जब उसकी टेकअप की बात करते हैं तो दे जस्ट गिव अस द आंसर के वी आर फुल, लाइक हम 5 साल के बाद सोचेंगे इफ वी कैन टेक अप और नॉट. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ पॉलिसी स्टेज दैट वी आर डीलिंग विद. अच्छा, दूसरी चीज़ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं. ऑफ कोर्स दुनिया में बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत रैपिडली सोलर इंटीग्रेशन और आरी इंटीग्रेशन अपनी कंट्रीज़ में इंक्रीज़ की हैं. सो पहली कंट्री इज़ वियतनाम. उन्होंने सो बेसिकली दे ऑफर्ड लाइक अ फीड इन टैरिफ फॉर पीपल टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड जो रूफटॉप सोलर हैं इन देयर हाउसेज या जो भी उनके पास साइट्स हैं. सो उसमें ये हुआ, दे केप्ट दैट फीड इन टैरिफ very low. It's around I think 0.08 cents. लेकिन ये था कि बिकॉज उन्होंने भी इतना परसीव नहीं किया था, एक साल के अंदर अंदर दे वेंट फ्रॉम लाइक 0.2 गीगावाट सोलर एनर्जी टू अराउंड 9 गीगावाट. अब इस एक साल में इतनी ज़्यादा सोलर की अडॉप्शन होने से उनके क्या इम्पैक्ट आया. So they were not foreseeing this first of all, but they were dynamic enough, they were adaptive enough to integrate their rapidly cater to this problem by adopting regulations and grid codes में changes उन्होंने कर सके timely. तो उससे ये हुआ कि देयर इज़ एग्जाम्पल कि अगर हम कहते हैं कि अभी सिर्फ 2000 मेगावाट हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है और हमारे पास कोई आगे कैपेसिटी नहीं है, और फेडरल गवर्नमेंट उल्टा आपको डिस्करेज सॉर्ट ऑफ, जिस तरह हम नैरेटिव सुनते हैं, डिस्करेज करती है कि आप इतना ज़्यादा सैंक्शन लोड से ज़्यादा आप सोलर ना लगाएं. तो देर आर वेज दैट कैन this all system can be protected, but government has to be fast about it and it should be seen in their planning. So for example, अभी भी मैं IG सब जो अभी अप्रैल में अप्रूव हुआ है उसको उठा के देखूँ तो अभी भी हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर के थ्रू दे आर इंटीग्रेटिंग इन द सिस्टम इज़ अराउंड 200, जबकि हमारी पिछले 9 महीनों में या 10 साल में तकरीबन हमने 900 मेगावाट हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में इंक्रीज़ आया. सो एक तो ये चीज़ है, सबसे पहली चीज़ कि प्लानिंग में इतनी कैपेसिटी देनी चाहिए. सो हो सकता है इट्स नॉट, द फ्यूचर इज़ नॉट दैट ग्लूमी. अच्छा, दूसरी मैं एग्जांपल मेंशन करूँगी इटली की. सो इटली में सो they had this problem of grid congestion. So उनकी भी ज़्यादातर जो solar और renewable energy लग रही थी, that was in the south region where their loads were mostly towards the center or north. They implemented this dynamic line rating system. हमारे वहाँ parallel यहाँ पे SCADA systems हैं, but उन्होंने साथ साथ इन सिस्टम्स को अपडेट करने के साथ साथ अपने ग्रिड कोड्स बहुत जल्दी अपग्रेड किए. अब इन्होंने स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के, और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में खाली आपकी वेरिएबिलिटी ग्रिड की नहीं देखी जाती, आपकी वेदर के इम्पैक्ट्स को भी बहुत देखा जाता है, बिकॉज आपका मिनट बाय मिनट आपका इस पर इम्पैक्ट होता है. सो दे हैड टू ट्रांसफॉर्म देयर सिस्टम एंड दे डिड इट. इट्स नॉट लाइक दे नॉट डिड इट. अच्छा, जो तीसरी एग्जांपल है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म में देना चाहूँगी टू थ्रो दिस आइडिया कि गवर्नमेंट्स इफ़ दे आर committed enough can do it. So Germany is a very success story. Germany ने अपने renewables की feed in tariffs दिए back in 2000. So 2000 से 2020 तक they kept a flat rate. So जो भी distributed generation कर रहा है या utility scale solar, उसको उन्होंने feeded tariff consistent दिया. Though overall over time we saw that renewable की prices have massively decreased, but they kept on giving those benefits to those people who could
अडॉप्ट दी सोलर टेक्नोलॉजीज़ और डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन लगा सकते थे और यूटिलिटी सोलर भी लगा सकते थे, तो उन्होंने सप्लायर को वो कॉन्फिडेंस दिया। एंड इन द लॉन्ग टर्म आप देखते हैं कि जर्मनी की अच्छी खासी डिमांड इज़ सपोर्टेड थ्रू renewables. So I think Pakistan can do it, Pakistan should do it. एक चीज़ आपने बोली उस पर मैं थोड़ा सा कमेंट करूँगी। व्हेन वी सिट विद द गवर्नमेंट्स एंड वी सी, जो एक सबसे अपेरेंट चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि फेडरल और प्रोविंशियल institutions, they don't talk to each other, they don't have the same mandate, they don't have the same agendas. So if federally आप government से बात करें तो वो obviously they're interested in getting more demand on the grid, they're interested in getting more people to pay for what the capacity is standing there for. At the same time provincial ministers etc से आप बात करें तो they're saying अच्छा 300 किलोवाट तक फ्री बिजली देंगे और जी स्टैंड अलोन सोलर हमें सपोर्ट करें कि हम सिस्टम से ही उतर जाएं, अपने कंज्यूमर को सिस्टम से हटा दें, उनको सोलर किट्स दे दें। सो ये एक ऐसा बारीक आई वुड से मसला है जिसको अभी अगर हमने सॉल्व ना किया और एक पेज पे ना आए तो आगे फ्यूचर प्लानिंग थोड़ी अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसला होगा। Thank you so much. कामरान मसूद साहब, सर एक आपकी तरफ से इंसाइट ऑफ हाउ द लिस्ट बीइंग फ्रॉम लेस्को, सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क्स, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं या आपको किस तरह से नज़र आ रहा है लुकिंग एट इट फ्रॉम सो क्लोजली from the LESCO side? So if you can share some insights with us, that will be very interesting. We'll have a couple of more sessions and then So we will now move back to the original topic, transition towards green Pakistan. So we all know the importance of the power sector, what it plays in the growth of the country, like economic expansion, employment generation, healthcare, education, promotion, agriculture, ecological sustainability, poverty alleviation, etc. So the biggest threat is now the climate change, and especially for the Pakistan. As we know, the Pakistan is only contributing almost less than 1% to global greenhouse emissions. But it is among the most vulnerable countries to the impacts of climate change, as we saw in the last year about the floods. So it is now a big threat to Pakistan's social and economic stability, and this is more motivating us towards the green transition. So this is a vision from our federal government. As the madam told, it started from the ARE policy in 2019, and it gave us the direction that till 2025 we will have the renewable share in the generation mix as the 20%, and then 2030 it will be 30%. Then came the high level document, the National Electricity Policy 2021, and then the low level document came from the government in 2023 Electricity Plan. And it added in the definition of renewable as the HYDL. So it increased the target to the 40% and 60% till 2030. And there is now the building code, as doctors are very well told about that, its requirement. It also includes now the requirements for solar PV system, the building strength and mechanical strength, all these things. Another is the Engineering Development Board is preparing the power sector indigenization plan about the local manufacturing of the renewable equipment. Okay, so net metering in Pakistan started officially in 2015 with the issuance of the NEPRA DG and net metering regulations, along with the guidelines for the customers and the discourse from the Alternative Energy Development Board. It is now merged in the PPIB. It is also doing the certification of the solar PV installers, AEDB, giving them licenses. So LESCO is following the directions from the federal government, the NEPRA and the ministry about the processing of the application, and it is the management had directed the field formations to strictly follow the timelines. And now we have also simplified our procedure
about the net metering installations. And LESCO is the leading company among all discos in Pakistan in terms of the net metering penetration. So this is just a view of how it is moving fast from 2017, and now you can see the exponential growth till now. Started from 3 megawatt and now we have almost 500, more than 500 megawatt installed by the consumers. So this is the installed capacity in LESCO only. Our peak demand was in almost 6100 megawatt in last fiscal year, and this fiscal year it reduced about 5900 megawatt. So these are the some benefits of the net metering, distributed generation. Like some benefits are for the utility company, some are for the consumers, and some are for the overall national level. Like for utility company, it has the benefit of reduction in technical losses when the current will reduce, underloading of our system, reduction of peak power requirement to a small extent, and for the country, like green energy, environmental benefits, saving of foreign exchange due to reduction in import bill of fuel, participating in the achievement of national RE target, which we have already set in the NE plan, sustainable and diversified future electricity mix, which Dr. Saab has told. Improvement, now the customer has the benefit of the improvement of voltage profile at consumer end and control of the bill amount. It is in his control now. If he will install system, he can reduce the bill. So there are some disadvantages of this also. For example, the stability issues, but not at the moment, but it can be when the penetration will increase. Like we have the example of Spain and Germany. Almost 10 years ago, there came a day in Spain when there was too much penetration of wind and solar in the country that by chance wind was maximum at that day and solar was also maximum. So there was no quantum of electricity drawn from the utility. So then the government started thinking in opposite direction. So this was the worst case example. Also there is a revenue loss, otherwise revenue loss for the discos because of net metering to some extent. And there is something which doctors have very well elaborated, the capacity obligations of discos. That we have to maintain the capacity for that consumer whole the day. He does not use our electricity in the day but came back on the night time. So this is another view of that. Capacity obligations of discos. So the way forward is that already mentioned in our National Electricity Plan that there are some requirements to be revised by the NEPRA, the regulator in the regulations and in the distribution code. Some technical things and some administrative aspects. And now if we will move in that direction, then we will have a more reliable, flexible, efficient and sustainable power network. Thank you. थैंक यू वेरी मच कामरान साहब. अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा फराज, if I were to sort of come back to you with a question, given the initial context that you've said, you put down, and some of the examples which Manahil laid, and also one thing which Kamran Saab mentioned, which was related to जिस तरह Italy में in terms of, because now we're looking at how the smart grid transition is happening. We do know that we have problems such as वो bill payments का मसला और इस तरह की चीज़ें, but like for example अगर हम smart grids की तरफ जाते हैं, and that's something which we can do today even with the existing infrastructure, because this is not an expansion capacity. How would this possibly have an impact on improving our renewable energy mix, or even overall हमारी cost को बेहतर करने की तरफ किस तरह से जा सकते हैं? If you can, and then Dr. Saab, if you would like to shed some light on this as well. Net metering, smart grid, all these things are kind of connected. तो पहले मैं first of all net metering पे थोड़ी सी बात भी हुई है. So I'll just speak a bit on that. Or should I use? I'll just go in closer. तो जैसे net metering के अंदर essentially, as was pointed out, जो main issue है from a revenue perspective वो ये है कि आपका revenue generated essentially कम हो जाता है because you have to pay the fixed capacity costs. So उसके अंदर I think the government is in the right direction. जो वो लोग बात कर रहे हैं National Electricity Plan के अंदर कि there should be fixed costs. Fixed charges need to be improved in the tariff. That essentially needs to happen. I don't think there is any other way unless you're going to
kind of renegotiate the capacity payments altogether, उनकी payments आप कुछ कर रहे हैं. Incorporating the fixed charges into volumetric charges for domestic customers as it's happening at the moment, that's economically at least that doesn't make much sense. What is the precise challenge? Perhaps some of the people who are more experienced over here in the local context can explain कि वो fixed charges को introduce करने में exactly problem आता क्या इतना ज़्यादा. और उसी से ताल्लुक है इस चीज़ का नेट मीटरिंग एज वेल एज सोलर का, क्योंकि essentially यहाँ पे एक equitable we need to have some sort of like sustainable and equitable growth. और नेट मीटरिंग में टिपिकली जाते वही लोग हैं जो ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि सिस्टम आपका ज़्यादा बड़ा है. और सोलर के अंदर भी टिपिकली ज़्यादा वही लोग जाते हैं जिनका who have like enough, exactly, more disposable income. And so उसका तरीका, for example, US के अंदर जैसे बर्कली के अंदर ये बात हो रही थी कि वो ये कर सकते हैं because they also run into these same problems. They were thinking of potentially targeting, they were thinking of putting increasing fixed charges in the electricity tariff precisely for this reason, for the capacity payments. और उसके बाद वो ये करेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनको वो rebate back कर देंगे वो fixed charges, लेकिन अमीर के ऊपर वो रीबेट नहीं होगा वापस. तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो फिक्स चार्जेस हैं वो ज़्यादा बर्डन उसका फिर उस तरफ हो रहा है, और फिर देन दे अलाउ यू टू काइंड ऑफ मूव टू सोलर एंड स्टफ विद द अंडरस्टैंडिंग के फिक्स चार्जेस हो चुके हैं एग्जिस्टिंग टैरिफ स्ट्रक्चर के अंदर टू कवर फॉर द कैपेसिटी कॉस्ट. क्योंकि जब वो कैपेसिटी इंस्टॉल हुई थी उस वक्त ये लोग 5 AC ग्रिड पे चला रहे थे. अब नाउ वंस द बिजली महंगी हो गई तो वो उस पर से उतर रहे हैं बिकॉज दे हैव द अडेप्टेशन मार्जिन बट द पुअर गाय डजंट हैव दैट मार्जिन, सो वो उनको फिक्स चार्ज करना पड़ेगा. So that's the logic, at least from over there. तो वो that's actually quite critical. और उसके बाद from ये जो वो वाला पॉइंट था कि जैसे स्मार्ट मीटर्स हो गए या अपने ग्रिड को ज़्यादा आपने इम्प्रूव वगैरह करना है. सो आई थिंक माई अंडरस्टैंडिंग इज कि ग्रिड में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ ये सारे काम किए जा सकते हैं. इट्स नॉट रियली दैट हार्ड. At least that's what I read, but maybe I'm wrong. One important point to mention over there is कि जो मैंने capacity वाला graph दिखाया था, उसके अंदर a bunch of thermal plants are actually getting offline sometime in the 2020s. तो जैसे वो निकल रहे हैं सिस्टम के अंदर से, it would be beneficial at least to consider the possibility of including, मतलब कि at least एक cost benefit होना चाहिए कि उसके अंदर आप जैसे ये transition out हो रहे हैं, perhaps you want to move towards solar, तो वहाँ पे थोड़ी सी opportunity है कि just as these old plants are retiring, you kind of want to go towards that side. Solar and also hydel, I think that's Solar as well as hydel. और hydel का वो फायदा ये भी है कि because one reason why hydel is actually good and actually it's complementary with solar, क्योंकि सोलर में वो फास्ट वो अप डाउन रैंप अप होता है, तो वो हाइडल उसको एग्जैक्टली कॉम्पनसेट कर सकता है क्योंकि आप वो पानी का प्रेशर वो चेंज कर दें उसका. तो सो देयर आर नेचुरली सम कॉम्प्लीमेंट्री एडवांटेजेस ओवर हियर एज वेल. बट आई थिंक फ्रॉम द नेट मीटरिंग पर्सपेक्टिव द मेन थिंग दैट नीड्स टू हैपन, दैट्स अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फेडरल रेगुलेशन, एंड आई थिंक टू करेक्टली गेट दैट डन टैरिफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कि जो सारी फिक्स कॉस्ट आपने वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस में डाली हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम, आपको अगर बिल कांस्टेंट रखना है, रिड्यूस द वेरिएबल चार्जेस एंड इंट्रोड्यूस फिक्स चार्जेस, और अगर और तो आपका ओवरऑल बिल मेंटेन रहेगा, गवर्नमेंट के रेवेन्यू की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर कोई बंदा सोलर पे जा रहा है तो रेवेन्यू अचानक गिरेगा नहीं, एंड यू कैन रीबेट बैक whatever, let's say, cost उसकी आ रही है पुअर पीपल पे थ्रू सम ट्रांसफर प्रोग्राम. Yeah, I think that makes sense. So we'll just Yeah, exactly. we'll just take one final comment from Dr. Saab and then we'll open the floor to questions. Dr. Saab, just say about the hull. हाँ, तो अब हमने सारों ने हल प्रेजेंट किया, अब आप अपनी असेसमेंट दें कि हमने सही बातें की कि नहीं, हल तो जैसे जो फिक्स चार्जेस की रैशनल क्या है. सो सोलर तो 4 बजे जाके सो गए. हमारी जो पीक डिमांड आई वो आई रात को 12 बजे. पिछले साल ऐसे ही हुआ. 25,516 सप्लाई की गई. डिमांड आई 31, लेकिन जो 5 से 6,000 मेगावाट है गर्मियों में और 2 से 3,000 मेगावाट सर्दियों में रोटेटिंग लोड शेडिंग होती है, वो सप्लाई ही नहीं की जाती, क्योंकि वही जिनकी आप बात कर रही हैं वो ऐसे फीडर्स होते हैं जिनमें चोरी ज़्यादा है, सो वहाँ रोटेटिंग लोड शेडिंग होती है. सो पिछले कई सालों से, अब शायद हम कभी मुसलमान हो जाएं, तो वो ना सप्लाई की गई ना अभी कोई इरादा है. तो वो जो 5,000 गर्मियों की वो जो मैंने डिफरेंस बताया, 25.5 सप्लाई की गई, तो बाद दफ़ा ये भी मिथ होता है अभी OT&D पूरी नहीं,
उसमें कैपेसिटी ही नहीं। मान लिया को मुमकिन है 5-7 साल का कहीं लोकल कहीं इशू होगा, 25.5 तो सप्लाई की गई, वो भी रात को, ठीक है, जबकि दिन का लोड सारा गया हुआ था, फैक्ट्रियां कुछ बंद थी, दुकानें बंद थी, रात को 12 बजे काय का लोड है, केड़ी फैक्ट्री चल गई रात को सवाए आपके एयर कंडीशनर के। सो वो जो पीक डिमांड आई, क्योंकि बात अभी मैं उस पर, एक तो 60% वो तो मैं कहा एनर्जी का उतना, फिर भी मुझे गम है उतना नहीं। असल मुझे मसला है इस गलत घर की वजह से जो मेरी पीक आती है और उसका टोटल यूटिलाइजेशन, वो जो मैंने नंबर बताने की कोशिश की 129-107 का, मैंने $80 बिलियन का लोन उठाया, यूटिलाइजेशन की 23%, 8 महीनों में, 8 मंथ्स में। वो जो गर्मियों के, क्योंकि मेरी जो सर्दियों की डिमांड है इन टेरावाट आवर वो है अराउंड 8.5 टेरावाट आवर्स नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, जो विंटर मंथ्स में। 8.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 102 बनते हैं। इसका मतलब है अगर एज्यूम कर लें कि पाकिस्तान में सर्दियां ही रहती, वी वुड हैव डन अ बिजनेस ऑफ 102 टेरावाट आवर्स, क्योंकि वो तो हमारी मिनिमम डिमांड है। ये जो मैंने 129 पे गया हूं तो ये 27 टेरावाट आवर बाकी 8 महीनों का ये कूलिंग लोड है, जिसके लिए मुझे 12 सर्दियों वाले के लिए तो मैं 15, 14, 16 लगा लेता था, इट वुड हैव सफिशिएंट। ये जो मैंने 20,000 एक्स्ट्रा लगाया है, जिसके लिए इतना बड़ा लोन उठाया है, उसका कारोबार किया मैंने 27 का। इज दिस सस्टेनेबल? इट इज नॉट। तो हल क्या? जितने भी हमने इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं, जेड़े मर्जी वियतनाम दी, चाइना दी, किसी और दी मिन्नत कर लो कि ये भाई मैंने ये टैक्स फ्री जोन बनाया है, आप इधर फैक्ट्री लाओ, वो कोई ट्रक वाला आएगा, कोई मतलब कोई मेरी रोटी खा जाएगा, ठीक है, कुछ मेरी इकोनॉमी में तब्दीली होगी, मेरी जो एक्स्ट्रा जनरेशन है वो अपना उसकी पेमेंट शुरू हो जाएगी, ताकि मेरा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाए। सो व्हाट डू आई मीन? वो जो 6,000 मेगावाट का जो मेरा बेस लोड है, पूरी हुकूमत क्या, पूरा मुल्क क्या, अपने एटीट्यूड में हम तब्दीली लेके आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, 6 ਨੂੰ 12 कर लीए, 6 को जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, उससे आपका वो जो अभी आपने फिक्स्ड कैपेसिटी मामला भी सीधा हो गया। जब आपने वो 12,000 की उसकी जब एवरेज आप यूटिलिटी देखेंगे, वो जो कैपेसिटी लगी हुई है, इट वुड, अभी मैं बड़ी आसान सी मिसाल से समझाता हूं। मैंने कहा 72% फिक्स्ड कास्ट है, लेट्स से 100 यूनिट आपने बनाए, 100 यूनिट्स, इस 100 रुपए से 28 रुपए ऑपरेटिंग कास्ट थी, 72 आपकी फिक्स कास्ट थी, और आपने 1 रुपए का यूनिट बेचा, 100 यूनिट बिके, ये आपकी हो गई 1 रुपए पर यूनिट कास्ट। अब मैं क्या करता हूं, इसको 200 बेच लेता हूं, तो मेरा क्या फर्क पड़ेगा? 72 तो 72 ही रही, वो तो फिक्स है। वो जो मेरी 28% मेरी ऑपरेटिंग कास्ट थी, वो मुमकिन है मुझे 200 के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट चलाना पड़ा 1-2 घंटे के लिए, वो 28 की बजाय 30 हो जाएगी, तो मेरी टोटल कास्ट क्या हो गई? 130। लेकिन 130 के अगेंस्ट मैंने यूनिट कितने बेचे? 200। यूनिट की कास्ट क्या हो गई? कम। अभी हम क्या करें कि अपने ये जो हम रात को, यानी कि जो बंदा भी, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है, पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें MDI मीटर लगा होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, वो फिक्स्ड कास्ट देता है कि जो भी आपने मुझे कहा कि भाई सारा साल कैपेसिटी लगा के रखी, गड्डी खड़ी रखी, मैनू शायद जाना पै जाए, ठीक, तो आपने सारा साल उस प्लांट को कहा मेरे लिए खड़े रहना, मैंने घर गलत बनाया हुआ है, मैनू शायद रात को गर्मी लग जाए, तो मैंने वो AC चलाना है, तो तुम अवेलेबल रहना, बट आई एम नॉट रेडी टू पे दैट कैपेसिटी चार्ज, जो कि मेरी वजह से उसने सारा साल रखा। तो ये फिक्स चार्ज जो सारी यूटिलिटीज दुनिया में करती हैं, मैं क्योंकि कनाडा में काफी वक्त गुजारा, मेरा अभी भी बच्चे उधर ही हैं, वो फिक्स्ड बिल आता है, TND का बिल है, ये उसका बिल है, ये आपका एनर्जी बिल है। तो ये बड़े सिंपल काम है। तो ये मैंने कभी थोड़ी सजेशन मैं देता रहता हूं
तो वो हमने कहा यार इसको 2 पार्ट टैरिफ कर दो, कैपेसिटी चार्ज सेपरेट ले लो, ऑपरेटिंग कास्ट सेपरेट ले लो, ठीक है, लोगों को भी समझ आए। फिर वो लोग आएंगे, अच्छा यार मैं 2 लावा इसी के तेन, क्योंकि इसमें तो जो सैंक्शन लोड वो मेरा तो बढ़ जाना, अब सैंक्शन लोड हो जाएगा 10 किलोवाट, उसकी कैपेसिटी पर देनी पड़ेगी ये, तो यार इस तरह करूँ कि मैं इसको ना बदल बदल के चलाता हूँ। सो यू विल चेंज बिहेवियर। 2 काम मैंने अभी मॉडलिंग की हमने, अभी अगर किसी को मौका मिले, अभी ये जौहर टाउन में एक बिल्डिंग बनी है कमर्शियल, इसी तरह हमने उनकी बात समझ में आ गई, कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर वो नॉर्मल बिल्डिंग बनती, उसका 50 लोग से ज्यादा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, 860 किलोवाट आवर्स एक दिन में इस्तेमाल होते हैं। कितने? एक दिन में 860। अब कितने हो रहे हैं? जस्ट एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाइए, हाँ जी, 83 से 90, ठीक है। अब ये अच्छा, ये सिर्फ एनर्जी का फायदा है। असल मैं अगेन कह रहा हूं, मैं एनर्जी तो बहुत ही बेचनी चाहना है। फायदा मुझे क्या है? फायदा ये है कि मुझे जो उसने मेरी पीकिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, वो जो मेरी 25 है, जो 27 है, जो कि जिसकी रिकवरी मेरी 23% है, जिसकी वजह से मुझे नया कैपेसिटी प्लांट लगाना पड़ता है, तो मैं उसकी जगह क्या करूं? वो जो मैंने इंपोर्टेड फ्यूल गलती कर ली, जो मुझे भी पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं ला प्लांट तो गड्डी ले आके हुण पेट्रोल के पैसे है नहीं, है मसला, ठीक है, गड्डी ले आके खड़ी कर ली, अब पेट्रोल के पैसे है नहीं, अब उसका क्या करूं? अच्छा सुन ले, मैं शायद आपको पता नहीं, मैंने एक कंपनी कनाडा की है, अच्छा को 12,000 इंजीनियर की, मैं उसका ग्लोबल हेड था, या आप जैसे कंसल्टेंट है पार्ट सिस्टम बिजनेस का, तो मैं खांगड़ कंसल्टेंट है उस हिसाब में, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंसल्टिंग हमें किसी की जरूरत नहीं है, ये जो जितनी भी हमने गलतियां कर दी हैं बड़े करेक्टेबल हैं, सही हो सकती हैं, लेकिन हमें जैसे कि हमने कहा कलेक्टिवली बैठना पड़ेगा। एक और जो बात हमने करनी है कि अपनी एनर्जी सेल को बढ़ाएं थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहली रिकमेंडेशन, ठीक। दूसरा क्या काम करें? अपने घरों को, अभी मैंने ये जैकेट पहनी है फैशन वास्ते, सर्दियों में क्या करूंगा? स्वेटर पहनांगा, कोट पहनांगा, ओवर कोट पहनांगा, किस वास्ते? टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मैं की कहना है, बिल्डिंग में स्वेटर पवा दो। ये आपका जो 9 इंच की दीवार है जो ईंट की, इसकी आर वैल्यू है 2, 1.9 टू बी एग्जैक्ट। सारी हीट जो बाहर से आती है ट्रांसफर करके, वो कहते हैं फड़ ओवन बनाना चाहता है, घर बना ला। जो मेरी ऊपर स्लैब में डालता हूं, वो कंक्रीट पहले थी, लकड़ के बाले, पिछतीर और मिट्टी, और मैंने कहा नहीं यार पक्की दीवार होनी चाहिए, सीमेंट भरो, लोहा भरो। अब वो क्या करता है, उसको हम कहते हैं हीट। वो लोहा गर्म ही रहता है, रात को भी आप ऊपर सोने गए तो पक्खे दी हवा गर्म, यार बाहर बड़ी छोड़ी हवा चलन रही है, ये पक्का गर्म क्यों दे रहा है? वी हैव सो स्टूपिड वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउसेस। सो आपने क्या करना है, अब अभी अपने घर में, अब मैं अभी आपको गारंटी देता हूं, आपने जो पैसे सोलर पीवी के लिए लगाने हैं, 12-14 जितने भी लाख हैं कि मैंने हाइब्रिड लगाना है, उसकी बजाय आप बिल्डिंग इन्वेलप पे लगा दो, यू विल सेव मोर। Thank you, Dr. Saab. Very nice insights, and I think based on practical experience. अब टाइम थोड़ा सा रह गया है, मेरे ख्याल 2 से 3 क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे। एक तो आपका, आपने काफ़ी देर पहले अस्सलाम वालेकुम सर, अहमद यूसुफ डिप्टी मैनेजर फ्रॉम लेस्को। मैं सर की बात में एक ओपिनियन ऐड करूंगा कि ऑल क्रॉस द ग्लोब जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं, जो कोल, LNG, LPG हैं, इनको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि हम यहाँ पे प्राइमरी एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द आइडिया इज़ के हमें इन प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को एनर्जी बना के और अपनी यूटिलाइजेशन को हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाना चाहिए, लाइक हमें ग्रीन कुकिंग की तरफ जाना चाहिए, हीटिंग को ग्रीन पे लेकर जाना चाहिए। पूरी दुनिया में कहाँ पे, आई हैव नेवर सीन, आई बीन टू अब्रॉड फॉर स्टडी एंड फॉर विजिट एज वेल, मैंने कभी भी गीज़र गैस पे चलते हुए नहीं देखा।
वाई? बिकॉज दे हैव द इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, और इलेक्ट्रिसिटी उनके पास क्यों अबंडेंट है, और उसकी यूटिलाइजेशन एज द सर इज सेइंग लोड फैक्टर ज़्यादा है उसका, यानी कि 110 टीरावाट से हम 100, 140, 150 पे कैसे जा सकते हैं? इसका मेरी नज़र में एक ही सलूशन है कि हमें प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज को एनर्जी कंजम्पशन के तौर पे यूज़ नहीं करना, हमने उससे एनर्जी क्रिएट करके, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करके, इलेक्ट्रिसिटी को एज अ प्राइमरी एनर्जी यूज़ करना है फॉर एवरीथिंग अदर। तो ये दैट इज़ द सोल्यूशन कि जिस तरह हम अपनी एनर्जी कंजम्पशन को अर्बेटली फौरी तौर पे बढ़ा सकते हैं। सेकेंडली, सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जी वो गर्मी सर्दी में हमारी पीक का बड़ा इशू है, दैट इज़ ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट है कि पूरी दुनिया में मतलब बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में सीजनल इम्पैक्ट है, उनमें कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू क्यों नहीं है? हमारे पाकिस्तान में क्यों मसला ये बन गया? द क्वेश्चन आई वुड से द आंसर मे बी द आंसर सर वुड गाइड कि इसका आंसर का जवाब ठीक है कि नहीं। अब इसका इशू था मार्केट लिबरलाइजेशन का, हमने मार्केट को लिबरलाइज किया ही नहीं, हम सॉवरेन गारंटीज़ की तरफ ही चले रहे हैं 1992 से ऑनवर्ड। अगर 1992 से वापडा कंसेप्चुलाइज प्लान कर गया था कि आप जनरेटर्स को डिस्कोस के साथ डायरेक्ट बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स में ले जाएं, तो गवर्नमेंट वुडंट हैव टू गो फॉर द सॉवरेन गारंटीज, नहीं जाना पड़ना था। और फिर डिस्कोस की रिकवरी बेहतर होनी थी, गवर्नेंस बेहतर होनी थी, मैनेजमेंट बेहतर होनी थी, हर बंदे का पता होना था आई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द 100% रिकवरी, अदरवाइज like the private sector, I'll be going out. जी, I think आपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर दिया है, तो I don't think we need to take it to the panelists, but I guess the points you made are correct. आपके साथ एक हैं, फिर इसके बाद इस तरफ भी कोई, अच्छा आपके जी, बाद मेरा नाम मोहम्मद आसिम, एनर्जी अपडेट मैगज़ीन का आज रिप्रेजेंटेटिव हूँ और कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई आपकी न्यूज़। मेरा सवाल यह कि मेरे पास एक डाटा है जो गवर्नमेंट, पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मैं डॉक्टर साहब की बात करता हूँ, वो जितनी कराची से लेके और फटा तो हर जगह गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में जो कंजम्पशन होती है वो 5.821 गीगावाट आवर है। इसकी कॉस्ट बनती है 232 बिलियन। इसमें अगर आप जिस तरह रक्षा फरमा रहे हैं कि बिल्डिंग्स को इस तरह हवादार किया जाए, रोशनी में काम किया जाए, जिस तरह सिंपल वे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उससे हम 40-45 बिलियन रुपये सेव कर सकते हैं। एक तो ये असर। दूसरा, मैडम ने कहा जी 12-14 घंटे लोड शेडिंग है। असल में हम पोस्ट ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, हम रूट कॉज की तरफ नहीं जाते। बात यह है कि गवर्नमेंट कहती है जहाँ थेफ्ट हो रहे हैं, लाइन लॉसेज है, वहाँ पे कर दो लोड शेडिंग। भाई आप अपने इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं कि वहाँ लाइन लॉसेज ना हो। ये कोई बात नहीं, हम पोस्ट ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, हम चले जाते हैं जी, बस ये नहीं हुआ, रूट कॉज की तरफ नहीं गए। मैम ने जो बात की जर्मनी की, इटली, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग डिफरेंट है, हमारी इकॉनमिक बैकग्राउंड में डिफरेंट है। सर ने जो बात की कि जिसमें क्लाइमेट चेंज किया तो 45% CO2 जो है वो सिर्फ अमेरिका डंप करता है अर्थ प्लैनेट पे, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना 55% डंप कर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसमें हम 1% आते हैं। बहरहाल जो लोग इस क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्सिबल हैं वो हाथ ही नहीं, वो निकल जाते हैं, क्योटा प्रोग्राम से भी निकल गए और इस तरह की दुनिया के बाकी प्रोग्राम में भाग जाते हैं। हम खुद कर रहे हैं, स्टेट्स कहते हैं हम खुद कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स कहती है भाई खुद कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को तो भी देखो ना। दूसरा, ये जो सबसे बड़ा जो इशू जो सवाल कर रहे थे साहब कि इसका हल क्या है, इसका हल वेरी सिंपल है। इसका हल ये है कि सादगी अपनाएं। इसका हल ये है कि 1000 अरब रुपया जो हम अनडेवलप्ड चार्जेस पे खर्च कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियों पे कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, लल्ले तरले कर रहे हैं, उसको आप 4-5 हज़ार अरब बचा सकते हैं। उस तरह कोई नहीं चाहता। कल मिनिस्टर ने बड़े खुले अंदाज में एक ने कहा हमने जो सेव किया था प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, इससे ज़्यादा हम सेव नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें एक कॉम्प्लिकेशन आ गई है, ये सिंपल हल नहीं है इसका। थैंक यू आसिफ साहब। सो एक मिनट, एक और, डज समबडी वांट टू एड्रेस इस पे? इन्होंने भी जो क्वेश्चन पूछा है उस पे जवाब तो शामिल कर ही दिया था खुद ही साथ, हाँ, तो लेकिन अगर कोई कमेंट करना कमेंट्स हैं, ठीक है, कमेंट्स हैं, सारे समझदार लोग बैठे। जस्ट एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगी कि मैंने एग्जांपल जर्मनी की 2000 की दी थी, 2000 एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, बट एट द सेम टाइम हमारे पास जो फराज ने भी मैप शो किया, वी हैव इंडिया राइट नेक्स्ट टू अस। राजस्थान में हमारे पास हमसे 20 गुना ज़्यादा रिन्यूएबल्स लग चुके हैं। सो इफ़ लाइक कंट्रीज वांट टू डू इट दैट दे कैन। इंडिया की एग्जांपल है, चाइना की एग्जांपल है। जी, मैं भी एक जी प्लीज़ के ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि जी ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट्स को सेविंग्स इन एनर्जी करनी चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ प्रोबेबली लीडर इन दिस। हमारे पास तकरीबन पब्लिक सेक्टर कनेक्शन हैं इस वक्त 1,05,000, और हमने लास्ट 6 to 7 ईयर्स में मैसिव एनर्जी ऑडिट्स अपनी बिल्डिंग्स के किए, कुछ रेट्रोफिटिंग की एक्सरसाइज की,
and we have saved about 43 billion rupees in that. और उसके अलावा government of Punjab alone, outside other regions of Pakistan call us the solar province. हम 26,000 public buildings को we have converted to solar. जो ऑलरेडी हो चुकी और जो ऑलरेडी हो चुकी है, इनमें प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, बेसिक हेल्थ यूनिट्स, टर्शरी हेल्थ यूनिट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। का भी एक स्कीम थी। जी हाँ, बिल्कुल, वो सारी पब्लिक बिल्डिंग्स। और उसमें मैं आई वाज सेइंग, लुकिंग एट द थीम ऑफ द टुडेज डिस्कशन सेशन, कि इसमें एक्विटेबल जस्ट ट्रांजिशन। सो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इन ऑल दीज ट्रांजेक्शंस एक द ओवरआर्चिंग थॉट ऑलवेज रिमेन्स टू बेनिफिट द more vulnerable segments of society. So small girls and boys, 33% schools that we converted to solars were girls' schools. 30% of all schools that we converted to solar never had access to electricity. So that changed lives of young boys and girls there. So ये नहीं कि governments are not sensitive to this. ऐसी तमाम interventions हो रही हैं, मगर शायद वो outside उस तरह से information disseminate नहीं होती. But people do think, in sitting in the governments as well, do think about savings and do think about just transitions. Ji, I think that's, there's a last question we'll be taking from here, and then if you allow, we'll take one more question after that. मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी वैसे जो ज़्यादा से आने हैं वो तो पाकिस्तान से जा चुके हैं, हम रह गए हैं पीछे। वी हैव टू पे लाइक बिग बिल्स। 2 ACs चलाते हैं तो हम तकरीबन 1.5 लाख बिल देते हैं, और वो भी हम सोच के चलाते हैं। तो द क्वेश्चन इज़ कि इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी पेमेंट्स हमें कितने साल तक पेमेंट्स करनी होंगी? लाइक मतलब एज कंज्यूमर्स हम कब तक बड़े बिल्स देंगे? सो आम तौर पे जो प्रोजेक्ट है वो 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और पहले 10 साल उसकी डेट सर्विसिंग करनी होती है। तो ज़्यादातर जो पेमेंट है वो पहले 10 साल में हो जाती है डेट सर्विस, क्योंकि 80-20 का है कि 20% आपकी इक्विटी होगी, 80% लोन होगा। तो जो 80% लोन है वो आपने पहले 10 साल में देना। न्यूक्लियर के लिए शायद वो 12 साल है, हाइड्रो के लिए शायद वो 15 साल, 10+2 का इस तरह का फार्मूला है। तो फिर वो जो आपने होता है जी, एक जो हमने ये बड़ा शौक है FDI का, ठीक है ना जी, वो बेशक गल पै के तो असी उन्होंने बेशक रोंदे फिरदे होइए, बट स्टिल वी वांट FDI। तो ये FDI ने जो हमारा हशर किया हुआ है वो आपके सामने है। सो तो हमारी जो अपनी कास्ट ऑफ सर्विस है वो बढ़ गई है। फिर जो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी होती हैं, जैसे सोलर मेक सेंस, जहाँ आपका ऑफिस है, स्कूल है, हर चीज़ है। जिसने रात को मुझ पे पीक पे आना है उसको हर सूरत मुझे कैपेसिटी पेमेंट चार्ज करनी है। ये तो मुझे जो स्कूल में लग गया, छत पे लग गया, वो दिन में उसने पीकिंग में मुझे हेल्प कर दी, उसने फ्यूल सब्स्टिट्यूशन कर दी। 2 फायदे हो गए सोलर के। लेकिन अगर वो शाम को AC चलाने के लिए मेरे पास आ जाता है, मैं 4 गुना पैसे लेने ना, ठीक है ना। तो ये असल हमें ये देखना है कि कहाँ सोलर बेनिफिशियल है, कहाँ नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स की जो यूजेज है उसका पैटर्न देखना होता है, और जो मेरा पैटर्न है वो मुझे पता है, ये मेरे घर की वजह से। मैंने अभी आपको नंबर शेयर किए हैं, ऑथेंटिक नंबर्स हैं, ये मेरे घर की वजह से सारा मेरा पैटर्न ख़राब कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बहुत अभी मैं बाई चांस अभी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया पाकिस्तान आने का, तो आई एम बिल्डिंग अ हाउस नाउ इन DHA। तो दैट विल बी एन एनर्जी एफिशिएंट हाउस। ऑल्दो DHA में मैं गया उनके पास आज से 5-7 साल पहले, जब मैं फारूक हुआ NTDC से, और मैं कहा मैं इतना यार वो सीधा काम कर लो, ठीक है, तो आप बड़ा ब्रांड हो, कुछ मेरी कुछ मशवरे हैं, कुछ इनको सीधा कर लो, बाई लॉज में ये कर लो, वो कर लो। नोबडी लिसन। सेम इज द केस विद बैरियर टाउन एंड अदर सोसाइटीज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हुआ है कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं राशिद महमूद, इनको मैंने 2-1 साल पहले जब पहली दफ़ा आए थे अपना मिनिस्ट्री में, उनको प्रेजेंट किया। सो ही अंडरस्टूड, बहुत शार्प माशाल्लाह आदमी है। तो इन्होंने फिर जाके कैबिनेट में बात की, कैबिनेट से होते होते वो नीका को जिम्मेदारी लगी, नीका लम्स आ गए, और लम्स में फिर हमने वो जो बिल्डिंग कोड में अल्हम्दुलिल्लाह मेजर कंट्रीब्यूशन की। तो आपको ये अपना रिजवान आप लाए हो बुक? अच्छा, वो जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे फिर जो है वो हमने एक थोड़ी बुक लिखी, लोगों को थोड़ी गाइडलाइन ताकि मिल जाए।
बहुत आसान है। तो अपनी असल में हम क्या करने हैं कि जो हम कर चुके, पहले तो लीकेज तो बंद करो। अभी कोई टूटी है यार, एक बाल्टी है, उसकी लीकेज बंद करो सबसे पहले कि मेरी पीक डिमांड बढ़े नहीं, एनर्जी सेल बढ़े, पीक डिमांड बढ़े। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ, ओंटारियो में, मैं उधर मिसागा में रहता हूँ, और हम भी, क्योंकि मैं उधर प्लानिंग में ही था, अपना ये जो कंसल्टिंग जो आम कंपनी थी, ओपीए ओंटारियो पावर अथॉरिटी उस वक्त थी सेपरेट, अभी आई उसमें मर्ज कर रही है। हमारे बाई चांस को हमारे टी&डी के हेड थे जो कि ओपीए के चेयरमैन जाके बने, तो जानते थे 27,000 पीक डिमांड आ गई 2006 में। 2006, आज क्या है 2024, 18 साल गुजर गए। पीक डिमांड क्या है, 23 से बढ़ने नहीं देते। 18 साल बाद एनर्जी सेल बढ़ी। सो इतने एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स लिए, बिल्डिंग, अभी बेटा बता रहा था कि बाबा उन्होंने कहा कि ये $10,000 ले लो, आप ये करो, अपना ये जो ना फर्नेस और ये जो एयर कंडीशनिंग इसको उठा के फेंको और तुम जो ना हीट पंप लगाओ, हम आपको रिबेट दे देंगे। कहता मैं मेरा को 1-2 हज़ार लगना, बाबा लगा लूँ। मैं पुत्र लाला, ठीक है। तो कहानी ये है कि जो एडवांस नेशंस हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं, उन्हां दे बंदे ते सोचण डे ने की करिए। असी फुकरे, उधार लैण दे शौकीन, ठीक है ना, तो हम नहीं सोच रहे। तो हमें इस तरफ सोचना होगा कि हम कैसे अपने मुल्क को इस चुंगल से निकालें जो कि उसमें प्रोडक्टिव डिमांड बढ़ाएं और कंजप्टिव डिमांड को कम करें। ये है असल में। थैंक यू वेरी मच। विद दिस वी विल क्लोज द सेशन टुडे। आप लोग बिकॉज़ जी जी, मैं इधर हूँ, रूम वेकेट करना है, लेकिन पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, तो हाँ जी, सो जिसने डिस्कस, अगर फर्दर क्वेश्चंस करने हैं तो पैनलिस्ट हाँ जी, वो दूसरे रूम में चले जाएंगे। जी जी, तो जी हाँ Actually, I've been asking. जी जी, हाँ जी, देखिए, द क्वेश्चन इज नहीं, इट्स द रिकमेंडेशन, बिकॉज आई बिलीव कि जो हम बातें कर रहे हैं, आई एम द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चेंबर, और जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और एग्जीक्यूशन, एंड देन देर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों की जो आप प्रोक्योरमेंट्स की कर रहे हैं, दैट देर इज़ अ ह्यूज गैप, कोई वैल्यू चेन तो बनी हुई नहीं है, एंड ऑब्वियसली दैट नीड्स टू बी डन। वॉट एवर द पॉलिसीज़ बनने से पहले यू नीड टू हैव द प्रॉपर लाइसेंस पीपल जो कि इस पॉलिसी को जो है ना, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना, अकाउंटेबिलिटी को सही कर सके। तो दैट इज़ अ ह्यूज गैप। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आई थिंक ये जो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर वॉट एवर सजेशंस वी आर गेटिंग कि प्रोक्योरमेंट के लाइसेंस पीपल शुड बी कम इनटू द होल वैल्यू चेन, जो कि ये पूरा बिजनेस को कर सकें। थैंक यू। ठीक हो, थैंक यू। Thank you very much, everybody. Some of the discussion